My precious brothers and sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे अनमोल भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। Today we are going to meditate Isaiah chapter 51 verse 16. आज हम यशायाह 51:16 पे मनन करने वाले हैं। You must read every word carefully. आपको सारा वचन बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। This verse says, I have put my words in your mouth and covered you with the shadow of my hand. यहाँ ऐसा लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपना वचन डाले और तुझे अपने हाथ के आड़ में छिपा रखा है। My beloved friends, this experience we all should have. मेरे अनमोल मित्रों, हम सभी को ऐसा अनुभव पाना चाहिए। Our mouth should be filled with the word of God. हमारे लब परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए। And we should be covered under the hands of God Almighty all the time. सदा परमेश्वर के हाथों के नीचे छिपे रहना चाहिए। 2 Samuel chapter 7 verse 28, David says, And now, O Lord God, you are God and your words are true. दूसरा शमूएल 7:28 में दाऊद कहते हैं, अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्य है। We must remember that his words are true. हमें हमेशा याद रखना है कि उनका वचन सत्य है। In the year 2008, I lost my beloved husband. सन 2008 में मेरे प्यारे पति का देहांत हो गया। He was my best friend. वो मेरे श्रेष्ठ मित्र थे। So I missed him so much, and I all the time thinking of him and saying the Lord, Lord, what can I do? I am all alone. मैं उनका कमी बड़ा महसूस कर रही थी, सदा उनके बारे में सोच रही थी। मैं परमेश्वर से कह रही थी, हे परमेश्वर, मैं क्या करूंगी, मैं बहुत अकेला हूँ। That time I started reading the word of God more and more and more. उस समय परमेश्वर का वचन मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ने लगी। And I was filled with the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा से भर गई। Through these experiences, the Lord spoke to me through His word. इस अनुभव के माध्यम से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया। And He spoke to me every day, do this, do that, and guided me in the Holy Spirit. हर रोज मुझसे उन्होंने बात किया, ऐसा करना है आपको, ऐसा करना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें भर दिए। I was greatly encouraged. मैं बहुतायत से उत्साहित हो गई। That's why we read in 1 Chronicles chapter 29 verse 12, it says, In your hand is power and might. इसलिए पहला इतिहास 29:12 में हम ऐसा पढ़ते हैं, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। Yes, my beloved friends, wait at His feet and let His hand come upon you all the time, and you will be empowered with His power and knowledge and wisdom and all the blessings of God. जी मेरे अनमोल मित्रों, आप उनका चरणों का इंतजार करें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको भर डालेगा। उनका सामर्थ, उनका ज्ञान, उनका बुद्धि से आप सदा भर जाएंगे। And not only that, if you read Isaiah 49 verse 2 and 51 verse 16, it says, In the shadow of His hand, He has hidden me. अगर आप यशायाह 49:2 पढ़ेंगे, वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है, उनके हाथों के साये में उन्होंने मुझे छुपा लिया है। Don't be worried, you are not alone. आप चिंतित ना रहें, आप अकेला नहीं हैं। But the Lord is with you. परमेश्वर आपके संग संग हैं। He'll guide you with His word. अपने वचन के माध्यम से वो आपकी अगुवाई करेंगे। With His power, He will lead you and give you all God's abundant blessings. उनके सामर्थ्य के माध्यम से वो आपकी मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर की बहुतायत के आशीष आपको भर देंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना में जाएं। Father, thank you, Lord, for your word. धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। Those who are discouraged in this world, Master, for many reasons, encourage their hearts through your word. इस जगत में जो लोग कई बातों के चलते निरुत्साहित हैं, उनको आप अपने वचनों के माध्यम से उत्साहित करें। Give them a thirst to read your word again and again and again as much as they can. उनको आप ऐसा प्यास दे, आपका वचन लगातार वो पढ़ते चले जाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार पढ़ते चले जाए। Through that, let them be empowered, encouraged, and Lord, and enriched in everything. उसके माध्यम से उत्साहित हो जाएं, उनको सामर्थ्य मिले, हर एक बातों में वो भरपूर हो जाएं। Thank you for your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Lord, let them be guided and guarded by the word of God, and let them have a sweet experience having Jesus with them all the time. अगुवाई करे और उनको सुरक्षित करे और प्रभु यीशु के अगुवाई के माध्यम से सदा वो भर जाएं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।
प्यारे दर्शकों, क्या आप स्कूल एनुअल एग्जाम, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो फिर आप बिल्कुल चिंता न करें। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस दिन अपने डर को पूरी तरह रोक सकते हैं। 13 फरवरी को रविवार शाम 4 से 6 बजे तक विशेष एग्जाम प्रेयर वर्चुअल मीटिंग। आप सोच रहे होंगे ऐसी मीटिंग के द्वारा क्या भला हो सकता है। 12वीं के मंथली टेस्ट में पहले मैंने 200 के लिए 2 अंक लिए थे। पिछले साल हुए मीटिंग में आकर अटेंड की। पब्लिक एग्जाम में गणित में 200 के लिए 200 अंक लिए। Praise God! Biology lesson term. Maths lesson term and I got 36 awards. Wow, 36 awards in medicine. இதுக்கே ஒரு வீடு கட்டணும் போல இது வைக்கிறது. I got the university rank. जी हाँ, पिछले 45 सालों से जीसस कॉल स्पेशल एग्जाम प्रेयर मीट ने और बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट अचीवर्स बनाया। डॉक्टर पॉल दिनाकरन, बहन इवेंजेलिन पॉल, सैमुअल दिनाकरन, डॉक्टर शिल्पा दिनाकरन और स्टेला रोमोला प्रार्थना में जुड़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप महान ऊंचाइयों पर पहुंचे। स्पेशल एग्जाम प्रेयर वर्चुअल मीट में जुड़ने के लिए 13 फरवरी के दिन शाम 3:50 पर अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से जूम ऐप पर जुड़िए। मीट आईडी है 9331645538 या 9331645539। जूम ऐप पर लॉग कीजिए, पासकोड 123 टाइप करके ज्वाइन कीजिए, या आप खुद इस मीट के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करने के द्वारा, या bit.ly/studentsmeet22 पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म में रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर मत भूलिए 13 फरवरी शाम 4 से 6 बजे तक तो निश्चय ही तैयारी के साथ में ऑनलाइन हमसे जुड़ जाइए स्पेशल एग्जाम प्रेयर मीट में।